Hello everyone, welcome back to BBVN online classes. Today we are going to start our new topic, transpose of a matrix. How we get the transpose of a matrix? सिंपली आपको लास्ट वीडियो तक हमने आपको मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके एग्जांपल्स आपको बताए गए थे। कुछ बेसिक क्वेश्चन उन पे हुए थे एग्जांपल के तहत। अब आपका मेन टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाउ वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। जिसमें उसमें आपका कंप्लीट ट्रांसपोज के बेसिस ही क्वेश्चंस पे कंडीशन रहने वाली है आपकी। What is the transpose of a matrix? क्या कहता है transpose of a matrix? Let A be any matrix. A be any matrix such as that A matrix को मैं लिख सकता हूँ इसके रेस्पेक्टिव ऑर्डर को Aij of any order m by n. Let A be any matrix in such a way हम इसको क्या लिख सकते हैं? The matrix is written as in the format of general format Aij of the order m by n. Then the matrix obtained by interchange the rows to its column. क्या कहा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है। इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स ए बी सी एनीथिंग एल्स, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या शो करता है m by n ऑर्डर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, वो मैट्रिक्स जो हमें मिलती है किससे? इंटरचेंजिंग द रो टू इट्स कॉलम। इंटरचेंज मींस जस्ट रो को हम किस में चेंज कर दें? कॉलम को, या फिर कॉलम को किस में चेंज किया जाए? रो में। फॉर एग्जांपल ये क्या कहता है कि आपने ए मैट्रिक्स अज्यूम की से ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, then its transpose will be written as a dash या फिर a t, a dash या फिर a t. That's the notation of transpose of a matrix, and that is equal to the same element a, but its order will be changed. Then its ith row becomes jth column and jth row becomes ith column. Then this is j and I, and order will also change, and that is the change in the order. This is the transpose of a matrix. A transpose or AT is equal to AJI, and the order will also change n by m. The matrix obtained by interchanging the row to its column is known as a transpose of a matrix. For example, मैं आपको कोई एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, किसी भी ऑर्डर की कोई जनरल मैट्रिक्स हम ले लें। मान लीजिए कि मैं कोई 3√3 0 5 2 1 ये मैंने मैट्रिक्स ली, किसी भी ऑर्डर की है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? R1 R2 R3 C1 and C2. So 3 rows and 2 columns, then the order will be what? Then the order will be 3 by 2. Then what is A transpose? सर A transpose कहता है कि आप पहले तो इसको A डैश या फिर AT से रिप्रेजेंट कीजिए, and that equals to the rows change to its column. First row become first column, second row becomes second column, and third row becomes third column. And the order will also change because the 2 rows and 3 columns, you can see that the order of the matrix will also change as per the matrix will change. This is called the transpose of a matrix. फिर से बता रहे हैं, transpose of a matrix is that the matrix obtained by interchanging the row to its column or column to its row. Then the matrix obtained by interchanging the row and column is known as the transpose of a matrix. कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले से उसकी प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज of a matrix
एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में जो प्रॉपर्टीज यूज हम करने वाले हैं वो क्या क्या होंगी, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है सर कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और मैं अगर उसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं मेरे को वही मैट्रिक्स मिलेगी। क्या कहते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स and again its transpose, the transpose of a matrix and we have to do again its transpose. It means the simple statement is the transpose of a matrix. It means एक मैट्रिक्स का हम अगर दो बार ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज and its transpose gives the same result, right? Second one is ka and its transpose, where k is any scalar quantity है ना, कोई आपका रियल नंबर है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? थर्ड वन इज a प्लस b एंड इट्स ट्रांसपोज दैट इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। फोर्थ वन इज ab एंड इट्स ट्रांसपोज, लिसन केयरफुली, ab एंड इट्स ट्रांसपोज दैट इज b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है मैं ट्रांसपोज की वो ये जो बार बार यूज होगी। देखिए इस केस में ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा कहीं भी, लेकिन प्रोडक्ट के रूल में ट्रांसपोज में हमेशा ऑर्डर चेंज होगा और ये जो सीक्वेंस है ये बार बार यूज होने वाली है आपकी। ए बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। आपको क्वेश्चन से हम एग्जांपल आपको शो करके दिखाएं कि इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करें। कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा एग्जांपल जो इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करे, लेट अस सी, देखते हैं कोई ऐसा एग्जांपल और इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है। आप किसी एग्जांपल को लीजिए, कोई दो मैट्रिक्स आप एज्यूम कीजिए ए और बी, उन सभी प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई करके देखिए कि क्या वो क्वेश्चन इसमें सेट रहते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स मिले, या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें, क्या वही होता है? जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए लेट मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूँ 0 1 2 3 और सेकंड मैट्रिक्स मैंने ली 2 9 7 -3, राइट? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लीजिए मैं ए का ट्रांसपोज करना चाहता हूँ और फिर इसका ट्रांसपोज, रिजल्ट क्या कहते हैं कि ए आना चाहिए। ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ से आपका 0, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 0 1, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, दिस इज 2 3, दिस इज ए ट्रांसपोज एंड वी वांट टू जस्ट अगेन इट्स ट्रांसपोज। तो मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से बोला सर इसका तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2 एंड दिस इज अगेन द सेकंड कॉलम, सेकंड रो बिकम्स ए सेकंड कॉलम, और आप देख पा रहे हैं 0 1 1 3 that is not equal to a. It means the first property is verified, the transpose of a matrix and its transpose always the same matrix, right? Second one is k dot a. It means किसी मैट्रिक्स की आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आप वो स्केलर, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सर आपकी ये है के ए ट्रांसपोज दैट इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज, है ना? अब मान लीजिए आपने के को स्केलर 5 लिया, के को स्केलर आपने 5 लिया, आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स को, है ना? स्केलर आपका 5 है, इसके करेंगे तो 0, दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15 एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इनटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से 0 1 2 एंड 3 और के की वैल्यू क्या आपके पास 5 है सर, इसका ट्रांसपोज बेटा 0 5, दिस इज 10 एंड 15 just equal to this is 0, this is 5, this is 10, this is 15. You can see that LHS equal to what? RHS. It means second property is also verified. Similarly आपकी ये है और ये है. These are the some basic property of transpose of a matrix. Now the main topic according to the transpose of a matrix is the symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Before that, please pause the video to note it down. Please pause the video to note it down. So students, this is symmetric and skew symmetric matrices. This is the very most important topic on the behalf of transpose of a matrix. इस टॉपिक का बार बार यूज होना है, बहुत बार यूज होना है। इसके बिहाफ पे 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जाता है हर बार, और इस बार भी पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा। तो उससे पहले ट्रांसपोज आपने सीखा, दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑन मैट्रिसेस। आफ्टर दैट ट्रांसपोज की बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है सर, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से क्या कहता है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ट्रांसपोज में ये बात नहीं बोली थी,
हमने ट्रांसपोज में ये बात नहीं बोली थी। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दैट सच एज दैट ए इक्वल्स टू एनी ऑफ द ऑर्डर ए आई जे, है ना, ऑर्डर तो सेम रहना इसका m/n 2/n जस्ट लाइक दैट, कुछ भी रहेगा इसका क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स हमने इस फॉर्मेट में ली। देन इट्स ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए then A is called सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये सब आपके बुक में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफ A is any square matrix, this is the condition square matrix of any order 2/2 3/3 4/4 just like that, लेकिन मैक्सिमम आपके पास 3/3 तक रहने वाला है। Then A transpose equal to A, the transpose of any matrix is equal to itself, then that matrix is called the symmetric matrix. For example, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आपने Aij assume की है whose ith row and jth column, then its transpose is what? Aj I. Its transpose is what? Aj I, and that equals to A. किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आप करने वाले हैं that equals to Aij is equal to Aj and that all are equals to A because A transpose equal to A. This is the symmetric matrix. कोई एग्जांपल आप ले लें इसका जो आपको ये वेरीफाई करे कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो आपको वही मिले। लेट हम कोई मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं A इक्वल्स टू, कोई भी मैट्रिक्स आप अज्यूम कीजिए किसी भी ऑर्डर की, लेकिन वो क्या होनी चाहिए आपके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ से ले लो √3 2 3, कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की 2 -1.5 -1, और एक कॉलम इसका और रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 -1 1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। तो मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूं तो देखिए फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, this is C1, this is C2, this is C3. When we get the transpose of a matrix, then its rows change with its column. First row become first column या फिर first column become first row. This is first row ना, becomes first column. √3 2 3. Second row becomes second column 2 -1.5 -1, and this is -3 -1 and it's 1. देखिए ध्यान से A का जो ट्रांसपोज मैंने किया क्या वो A के इक्वल आया? देखिए फर्स्ट रो वही है, सेकंड रो भी वही है आपकी, थर्ड रो भी वही है। दैट्स व्हाई A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द सेकंड केस इज दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है सर, फिर से आप क्या करेंगे, लेट A be any square matrix such as that A equals to what? Aij of any order. A be any square matrix such as that A equals to Aij of any of the order. If A transpose equal to negative of A, when we get the transpose of a matrix and if you find that the negative of that matrix, आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और आपको उसका नेगेटिव मिला, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर A is a skew symmetric matrix, then A is what? Skew symmetric matrix। सिंपल सी डेफिनेशन, किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया वही आपको मैट्रिक्स मिली, इट मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज किया आपको नेगेटिव मिला उसका, तो क्या हो गया इसका मतलब आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर आपने A ये ली थी तो A ट्रांसपोज क्या होगा सर? नेगेटिव ऑफ A एंड दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। Ij विल ऑलवेज चेंज Ji, Ij इक्वल्स टू Ji, दिस इज द ऑर्डर। बट सर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपने I को J के इक्वल किया, अगर मान लीजिए आपने I को J के इक्वल, फॉर एग्जांपल A11 A22 A33 डायगोनल एलिमेंट्स, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायगोनल एलिमेंट्स की। तो बोला सर A, जैसे आप ये कहते हो A12 किसके इक्वल हो जाता है? A21 के।
A12 किसके इक्वल हो जाता है A21 के, कब, व्हेन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सच एज दैट A13 किसके इक्वल हो जाएगा A31 के, मतलब जस्ट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विल चेंज टू इटसेल्फ 1 3 3 1 1 2 2 1। तो ना सर A22 जो होगा वो A22 ही होगा, हाँ A22 होगा किस केस में, जब मैट्रिक्स क्या होगी सिमेट्रिक। लेकिन अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक के केस में है, इसका मतलब A22 किसके इक्वल होगा बेटा माइनस ऑफ A22, माइनस ऑफ A22। तो कहते हैं कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक के केसेस में I इक्वल्स टू J रख देते हैं, देयरफॉर आप A ट्रांसपोज जब करते हैं तो उसमें जो Aij आपका कॉलम आता है वो दैट विल बी रिप्लेस टू माइनस Aj। तो सर Aii जो होगा इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक दैट ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ Aii, minus of Aii, that I represent its ith row and again I its jth column, it means same order same element just like A11 2 2 3 3। तो बोलो उस केस में स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा सर माइनस आएगा, इस माइनस को इधर लाऊंगा मैं सर Aii प्लस Aii 2 टाइम्स ऑफ Aii and that equals to what 0। मैं यहाँ से 2 हटाऊंगा, डिवाइड में जाएगा 0 by 2 again 0, it means Aii equals to 0। it means it shows that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0। all the diagonal element of a skew symmetric matrix are always 0। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी skew symmetric matrix आपकी है उनके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। उसकी रीजन क्या है, रीजन सर ये है कि किसी भी डायगोनल एलिमेंट का आप जब उसका ट्रांसपोज करेंगे किसमें स्क्यू सिमेट्रिक में, यू हैव टू गेट ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर because Aii is equal to minus of Aii या Ajj equals to minus of Ajj, और वो माइनस इधर आएगा तो प्लस, दिस इज 2 टाइम्स और 2 टाइम्स इधर जाएगा 0, then always the diagonal elements will be 0। this shows that the diagonal element of a skew symmetric matrix are always 0। the topics are first is transpose of a matrix, simply any matrix changed to row its column, then transpose of a matrix we have to find। आफ्टर दैट कुछ हमने प्रॉपर्टीज की डिस्कस की ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट ऑन द डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स गिव द सेम मैट्रिक्स then it is symmetric, and if the transpose of a matrix give the negative of that matrix is called the skew symmetric। before that please pause the video। अगर आपको इसमें से कुछ देखना हो लिखना हो तो उसको आप लिख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, बुक में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना है, यहाँ से इसमें से कुछ लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है कुछ इसके बिहार पे कुछ थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स है ना, कुछ थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। Yes students, the next topic and the last topic in the behalf of transpose of a matrix is depending on the 2 theorems। अब तक हमने ट्रांसपोज पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज बेस पे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिफाइन किया, उनके कुछ लॉजिक देखे। अब इन सब कंप्लीट फीचर्स को देखते हुए देयर आर द 2 theorems। फर्स्ट वन इज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आपकी कुछ भी हो ए बी सी, दैट ऑल द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर, राइट। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, बार-बार हम ए इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे जनरल फॉर्मेट ए मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करवा रहा है, यहाँ से बी भी लिख सकते हैं, आप सी भी लिख सकते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी है, रियल एंट्रीज में उसकी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है, तो क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए प्लस A transpose is always symmetric, and second one is A minus A transpose is skew symmetric, A minus A transpose is skew symmetric। इसको हम प्रूव करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ कहते हैं कि सर आपने मैट्रिक्स को ले ली, ठीक है, क्या A, और उसका ट्रांसपोज भी किया, मैं क्या करूंगा लेट मैं B कंसीडर करूंगा किसको A प्लस ए ट्रांसपोज। ये मेरे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, इसको मेरे को क्या करना बेटा सिमेट्रिक करो। सिंपल सी बात है कि सर इसका आप ट्रांसपोज कर दो, ये ले आओ आप, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये ले आओ आप, तो क्या करेंगे ऑन गेटिंग ट्रांसपोज टू बोथ साइड, तो यहाँ ट्रांसपोज किया मैंने तो इधर भी ट्रांसपोज होना, सिंपल सी बात है। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको क्या कि सर जो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है दैट इक्वल्स टू व्हाट a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो behalf of this property we will verify that A transpose and this is A transpose and it's again transpose,
आप यही बताया गया था कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, दिस इज ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज गेटिंग द सेम मैट्रिक्स ए। अब देखिए ये जो है ये क्या आपकी मैट्रिक्स नहीं है जो आपने कंसीडर की थी, क्या बी। तो बोला सर आपने क्या किया, बी का ट्रांसपोज किया और आपको बी मिल गई, बी का ट्रांसपोज किया और बी ही मिल गई। इसका मतलब दिस रिजल्ट शोज दैट दिस ऑलवेज व्हाट, सिमेट्रिक। सेकंड वन इज, मान लीजिए कि आपने ये कहा कि लेट बी इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। We have to get that this result is always skew symmetric. We will verify that on getting the transpose to both sides. This is B transpose equal to again the same property, A transpose minus H transpose and its transpose. This is what A transpose minus double transpose of a transpose, getting the same matrix. This is A, this is what A. मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँ इसमें, तो हो जाएगा सर A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या था सर आपका, B तो था, तो ये क्या आ गया, B negative of B and that equals to B transpose. You can find that if we getting the result in case A plus A transpose, if we get the transpose of a matrix that equals to transpose that matrix that equals to B, मतलब in case आपको ये verify करना था कि A plus A transpose is always a symmetric matrix and A minus A transpose is always a skew symmetric matrix। इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हम जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको वेरीफाई करेंगे। उसमें क्या कहा गया है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज को छोड़ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर मैट्रिक्स। If they are of any of the order 2 by 2, 3 by 3 and 4 by 4 just like that, but the maximum order or the minimum order will be what, 1 by 1 and the maximum order in this case at this level is 3 by 3 order। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कैसे, मैं आपको लिख के बताऊं कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आपके पास लेट मी अज्यूम दैट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी ऑफ द ऑर्डर दैट विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन according to this format we will write here A equals to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose। ये थ्योरम कहती है आपकी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सम में ऐड या एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। हमने आपको रिसेंटली जो रिजल्ट प्रूव किया था उसमें बताया था कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा सर, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑर्डर पे किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट नेवर चेंज इट्स ऑर्डर और इट्स रिमेनिंग। तो क्या करेंगे सर, अगर A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाफ ऑफ दिस इज व्हाट, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स व्हाई द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट अस वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे सर कि क्या ऐसा होता है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का और हम उसको वेरीफाई करेंगे क्या ये रिजल्ट उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि हमने क्या थ्योरम पढ़ी, तो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा वहां से, तो उसको आप रिमाइंड करें, ध्यान रखें उसको, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे बार बार उसको। मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट अस वी टेक एन एग्जांपल, लेट बी एनी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की, आप 2 बाय 2 ऑर्डर की तो बहुत सिंपल हो जाती है, आप 3 बाय 3 ऑर्डर की लीजिए। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। दूसरा इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, -2 3 -2, -2 3 -2, ये आपने ले लिया। कोई ये आप जो आपको अच्छा लगे, -4 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, -3, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल सी बात। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। क्या करेंगे सर, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, इसका बी ट्रांसपोज होगा 2, देखिए आप ऑर्डर इसका थोड़ा बहुत चेंज कर भी सकते हैं, एलिमेंट्स आपको इस तरह लेने हैं कि इसका ट्रांसपोज कर दे कि आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए। 2 -1 1, -2 3 -2 -4 4, हाँ थोड़ा सा आप इसको अगर चेंज करें तो -3 रख सकते हैं।
अब मान लीजिए मैं इसका ट्रांसपोज करूं, मैं क्या करूं, इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो सर इसका ट्रांसपोज मेरे को मिलेगा 2 -4, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, -1, दिस इज 3, दिस इज 4, this is 1, this is -2, this is -3, and you can find that this is the transpose, right? now मैं क्या करूंगा सर, वही b प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि a प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो मैं क्या करूंगा b प्लस बी ट्रांसपोज निकालूंगा सर, b प्लस बी ट्रांसपोज क्या आता है देखते हैं, b को b प्लस ट्रांसपोज में आपको ऐड करना है, तो क्या आएगा देखो, 2 + 2 4, -1 -2 -3, 1 -4 -3, जस्ट एज दैट। तो इन सिमिलर वे जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ आएगा एंड हाफ ऑफ दैट, फिर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे, आप इसको कोई सी मैट्रिक्स या पी मैट्रिक्स मान लेंगे, आप इसको कोई भी ऑर्डर में पी मैट्रिक्स मान लेंगे, आपने पी का ट्रांसपोज किया और आपको पी मिला, इसका मतलब ये क्या सिमेट्रिक है। फिर आप क्या करेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे, इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे, इसको आप कोई क्यू मैट्रिक्स मान लेंगे, क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने किया, नेगेटिव ऑफ क्यू आपको मिला, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हाफ ऑफ इसका क्या हो जाएगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका मतलब जो P है और जो Q है उसका सम किसके इक्वल आना चाहिए, B के इक्वल आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि इस क्वेश्चन पे, इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, हाउ वी कैन express as a square matrix is the combination of the sum of the two matrices, that is a square symmetric and a skew symmetric matrices. How we solve? First of all, we write any matrix for the given question. The matrix is the order of any order, but it is always a symmetric square matrix. कंडीशन यही कहती है कि any square matrix, पहली बात वो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए सर। आफ्टर दैट हम उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे दे, मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स दे दूं आपके पास 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, ए ट्रांसपोज निकालूंगा, जो भी आएगा, फिर क्या करूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालूंगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी मैं उस मैट्रिक्स को इसको फर्स्ट पी दे दूंगा और उसको नाम कर दूंगा, क्योंकि द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज ऑलवेज ए मैट्रिक्स, the sum of the two matrices is always a matrix, that's why A plus A transpose is P and P is again a matrix. After that मैं क्या करूंगा, इस P का ट्रांसपोज करूंगा और वो मेरे को क्या मिलना चाहिए, P, क्योंकि रिजल्ट क्या कहता है, A plus A transpose is always symmetric, और मैं जब Q का ट्रांसपोज करूंगा वो मेरे को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव ऑफ Q, because A minus A transpose is always what, skew symmetric, and these symmetric and skew symmetric जो मैट्रिक्स है आपकी कौन कौन सी, P और Q, तो इन दोनों का जो सम है P plus Q and that equals to what, A। अगर ऐसा आता है it means the theorem will be expressed as the verified, जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो टुडे our total topics are, first topic, the main topic, transpose of a matrix, some properties behalf on the transpose of a matrix, after that this transpose will change to itself as a symmetric and a skew symmetric matrices, and the total consideration on this complete topic depending on the two theorems। first one जो मैंने आपको यहाँ से रख कर दी है वो क्या थी कि किसी भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें रियल एंट्रीज के बिहाफ पे अगर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल द रियल एंट्रीज A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is always skew symmetric। वो रिजल्ट हमने आपको यहाँ से वेरीफाई किया था। इस रिजल्ट के बिहाफ पे ये जो लास्ट थ्योरम है ये कहती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कैन बी एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस की जाती है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। दीज आर द टोटल कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन before exercise starting 3.3. in the next video we are going to start exercise 3.3. before that please read out or explanation of all the transpose, symmetric and skew symmetric and these two forms। ये सभी आपके माइंड में होने चाहिए, इनका पूरा पिक्चर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज में आपके पास ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे किया जाता है, उनका एडिशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड हाउ वी फाइंड द A square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, समझते रहें। उसके बाद कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछते रहें। नोटबुक आप बनाएं, बुक आप खरीद लें, क्योंकि पढ़ना आपको निश्चित है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।